Hello student, now the new chapter aldehyde, ketones and carboxylic acid. You know aldehyde and ketone they have a carbonyl group, but in aldehyde there is a C double bond OH group and ketone there is a C double bond O group. And the carboxylic acid you know very well, C double bond O OH group. Clear? So first we discuss about the aldehyde and ketone, then after carboxylic acid. Carboxylic acid is the last topic. So first R C double bond OH. Yeah, suppose you have this type of group. This is C double bond O and both side of single bond. Suppose in this case one side alkyl group attached and one side hydrogen is attached. It means the compound is aldehyde and the symbol of aldehyde is C double bond OH. But in this case both side of alkyl group attached, it means there is a two side of alkyl group and center is C double bond O. It means this is a ketone. You know very well the aldehyde secondary suffix is al. This is a IUPAC name. Yeah, and the secondary suffix of ketone is on. Yeah, clear? Primary suffix is formyl and primary suffix is what? Keto. But the secondary suffix is al and ketone is on. Now there is an example of aldehyde and ketones. You know very well this is the first member of aldehyde, HC double bond OH. This is what? Methanol or formaldehyde. Formaldehyde is a common name. And CH3CHO, it is what? CH3 C double bond OH. Now in this case there is a C double bond OH, C double bond OH and C double bond OH. This is what? Ethanol al. This is al, not ol. This is al and the chemical name is common name acetaldehyde. Acetaldehyde and formaldehyde is a famous name. Now the same case, suppose you have ring and C double bond OH, the molecular formula is C6H5CHO. This is what? Benzaldehyde. Benzaldehyde is a common name as well as IUPAC name. In this this is a formaldehyde, this is a aldehyde group, and now this is what? Ketone group. So you know this is the first member of ketone group. Propanone is a IUPAC name and acetone is a common name. And dimethyl, and this is what? Ketone group. This is dimethyl ketone. In this case this is butane 2-on and this side is ethyl, this side is methyl, so ethyl methyl ketone. Now C double bond O CH3, this is also a ketone group. The common name is what? Common name and IUPAC name is acetophenone and the second common name is methyl phenyl ketone. And the next is benzophenone. Benzophenone is a IUPAC name and diphenyl ketone is a common name. Clear? So these are the example of aldehyde and ketones. Now the next is method of preparation of aldehyde and ketones. Listen carefully. It is ये जो जितना भी टॉपिक्स है ऑलरेडी मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं. नाउ इन दिस केस द फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. देखो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल तो कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल इज नो इफेक्ट. तो नाउ द फर्स्ट केस विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 और एसिडिफाइड KMNO4. तो देखो बताया भी था मैंने 1 डिग्री अल्कोहल अल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी मतलब नहीं, ओनली प्रिपरेशन फॉर कीटोन एंड एल्डिहाइड. तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो देखो क्या बना रहा है? एसीटोन. क्लियर? एंड 3 डिग्री अल्कोहल, देखो 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑल्सो देयर, तो इससे क्या बना रहा है? कीटोनिक ग्रुप. ब्यूटेन 2-on मतलब कीटोनिक ग्रुप. ओके, अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसको हमें किसमें पढ़ना होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले टॉपिक में. क्लियर? तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना रहा है? कीटोन. देखो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है. क्लियर? तो 1 डिग्री अल्कोहल से, अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल से नो इफेक्ट. तो देखो पहले तो इसमें एक्चुअली क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल से पहले बनेगा आपका, इन दिस केस यहाँ पे अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो आपका पहले बनेगा एल्डिहाइड. लेकिन ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि एल्डिहाइड बनने के बाद तुरंत क्या दे देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. या क्लियर? ओके. नाउ द पीसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट टॉपिक, लास्ट अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर वाले चैप्टर में. पीसीसी इज pyridinium क्लोरोक्रोमेट. रेशियो याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको कंपाउंड याद रखना है कि इसमें होता है पायरिडीन, क्रोमिक ऑक्साइड्स एंड HCl. ठीक है, यहाँ पे जोन्स रिएजेंट है, कोलिन्स रिएजेंट है, सेरेट रिएजेंट्स है एंड NBS एंड ब्रोमोसक्सिनामाइड. इन दिस केस, इन सब के केस में
1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा इनकी प्रेजेंस में, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, एंड 3 डिग्री अल्कोहल है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट इन दिस केस द MnO2 ओनली पॉसिबल फॉर बेंजोइल क्लोराइड और एलाइलिक बेंजोइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक यू नो वेरी वेल, जहां पर OH ग्रुप होगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अरेंजमेंट होगा, मतलब उसके बगल में जो कार्बन होगा वो कार्बन दूसरे कार्बन से, देखो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो होगा वो डबली बॉन्ड अरेंजमेंट होगा. सेम दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल मतलब क्या है, रिंग के ऊपर CH2 को बोलते हैं बेंजाइल, और OH है तो बेंजाइल अल्कोहल. तो अगर बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं MnO2 से तो क्या बनाएगा, तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है. 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है. देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना रहा है, एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड. और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है देखो तो क्या बना रहा है, एसिटोफिनोन यानी कीटोन. उसी टाइप से एलाइलिक अल्कोहल है, देखो 1 डिग्री है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 1 कार्बन से है, तो इससे क्या बन रहा है, अल ग्रुप मतलब व्हाट, अल इज व्हाट, एल्डिहाइड. और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है एलाइलिक अल्कोहल का तो इससे क्या बना रहा है, ओन कीटोनिक ग्रुप. क्लियर. सेम एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने बताया था कि यहां पर देख लो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये एक्चुअली क्या है, बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर रेड हॉट कॉपर ट्यूब. तो 1 डिग्री देखो अल्कोहल है तो क्या बना रहा है, एल्डिहाइड. 2 डिग्री से एसीटोन, 3 डिग्री से क्या बना देगा, एल्कीन. ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, आप चेक कर सकते हो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में. एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाय ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन. तो एल्कीन के ओजोनलिसिस से भी क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन. इसका शॉर्ट ट्रिक भी दिया हुआ है. तो देखो पहले क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3, और यहां पर हम लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4. तो देखो O3 क्या करेगा, इसमें 3 ऑक्सीजन है, एक आकर यहां पे जुड़ेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और 2 ऑक्सीजन नीचे, यानी एक घर जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है. देखो तो देखो अब ये यहां से ऐसे ब्रेक हुआ तो CH2O, तो ये यानी CH2O का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO 2 मॉलिक्यूल्स है. और ये H2O जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O2. क्लियर. शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करना है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक में. अगर एग्जाम में ऐसे दिया हो O3 CCl4 और सेकंड दिया है वाटर और जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो सिंपल क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. यहाँ पे जो 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को आप यहाँ दिखा दो, तो देखो CH2O क्या बन रहा है, यही तो बन रहा था. और एक ऑक्सीजन जो बचा है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा. सेम एज ये भी वही है, देखो सिर्फ ये डबल बॉन्ड पे इफेक्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड पे. देखो तो ये ऑक्सीजन एक यहाँ अटैच्ड हुआ, 2 ऑक्सीजन नीचे, देखो फिर वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो ये 2 ऑक्सीजन देखो C, ये ऐसे निकलेगा CH3CHO और इधर से SCHO, देखो, और ये वाटर के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड. तो यानी क्या बन रहा है, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एसिटल्डिहाइड. शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक भी यही है. देखो यहां से ब्रेक किया तो इस पार्ट में क्या बन रहा है, CH3CHO, और इस पार्ट में बन रहा है CH2O मतलब SCHO, और जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच रहा है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा. सेम एज इसमें भी है यही. देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हुआ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर. अब देखो यहाँ से CH3CHO, यहाँ से भी CH3CHO, तो 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के और H2O ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड. शॉर्ट ट्रिक भी देख लो, वही चीज है, CH3CHO, एक ऑक्सीजन बचा वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सेम एज इसमें भी है. देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन, 2 CH3 है, इधर एक ऑक्सीजन आकर यहाँ जोड़ा, 2 ऑक्सीजन नीचे. तो ये देखो यहाँ से CH3, 2 CH3 है, C डबल बॉन्ड हो, कीटोनिक ग्रुप और एक फॉर्मल्डिहाइड, और H2O इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना दिया. सेम यही है, देखो क्लियर. सेम इसमें भी वही है, तो ये प्रैक्टिस करना अपने आप से. क्लियर. तो नेक्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4. देखो एक चीज याद रखना, एग्जाम में अगर वाटर ना लिखा हो, अगर ये कैटलिस्ट गिवन है तो इसकी प्रेजेंस में हमेशा हाइड्रेशन होता है. तो देखो एक्चुअली क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइंस है, इथाइन ग्रुप. अब देखो होगा क्या, इसमें इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. और वाटर में H प्लस और OH माइनस. H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहां पर नेगेटिव होगा, और OH कहाँ अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव होगा. कहीं से भी कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो, इस साइड भी. तो देखो ये बना कंपाउंड.
अब इसका टॉटोमेरिज्म कराते हैं। टॉटोमेरिज्म पढ़ाया था मैंने 11th में। देखो इसको मानते हैं हम 1, 2 and 3। तो यहाँ लिखा है 1,3 हाइड्राइड माइग्रेशन। तो देखो यहां से H जो है वो शिफ्ट हुआ थर्ड वाले कार्बन पे। देखो 1, 2, 3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो 1, 2, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या बन गया CH3। और जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो C डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, पढ़ाया था मैंने। सेम ऐसे ही इसमें भी है। देखो H प्लस आकर यहाँ अटैक किया, जो भी है, तो ये बना। इसका भी वही कराओ। देखो ऑक्सीजन से पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो इसका हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या बन गया एसीटोन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है। इसमें ईन प्लस ऑल जो होता है, टॉटोमेरिज्म में पढ़ाया था, ईन प्लस ऑल किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप में। तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तुरंत क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बना देगा। सेम एज यही भी है, यहाँ पर भी है। इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप से, बस क्वेश्चन लिखो और उसके बाद अपने आप से करो। देखो फॉर इथाइन, अगर इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो एल्डिहाइड बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड। और अगर एनी अदर एल्काइन ग्रुप है तो उससे कीटोन बनाएगा। देखो इन दिस केस देखो एल्काइन इथाइन था इसमें, तो इसमें सिर्फ एल्डिहाइड बन रहा है, बाकी उसके अलावा कोई भी मैंने एल्काइन लिया तो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप। देखो ब्यूटेनोन, क्लियर, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पता ही है जहां पर C डबल OH ग्रुप होता है। बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करा रहा है किसकी प्रेजेंस में, वी विल पास वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर MnO एट 575 केल्विन। देखो ये दिया हुआ है। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या है इसमें, इसका देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, 2 मॉलिक्यूल्स है। तो देखो यहां से OH और H निकला, वाटर, CO2 निकला, और क्या बना, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। सेम ऐसे भी मैंने यहां भी किया है प्रैक्टिस। ये एक्चुअली क्या होता है, पुअर यील्ड होता है, मतलब इससे जो प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड कीटोन्स वो क्या होता है, उतना अच्छा नहीं होता, मतलब उतना ज्यादा प्योर नहीं होता। तो देखो इसको भी मैंने किया है, पहले यहां से निकालो OHH, फिर CO2, फिर बनेगा CH3CHO। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है बाय डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पायरोलिसिस भी बोलते हैं इसको। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ इसको। यहाँ पे पहले आपने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, उसको CaOH के होल ट्वाइस से कराओ तो ये बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। आप इसको स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेगा। अब देखो कैल्शियम फॉर्मेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो देखो यहां से निकाला क्या है मैंने, CaCO3 निकला। अब बचा क्या, देखो HCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, ओके, 100%। सेम एज एसिटिक एसिड में भी यही होगा, पहले बनेगा कैल्शियम एसिटेट, उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा। सेम एज बेंजोइक एसिड में भी वही है। क्लियर। तो इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, पहले कैल्शियम बेंजोइड बन रहा है, फिर क्या बनेगा, बेंजोफिनोन, या इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। दो तरफ रिंग स्ट्रक्चर है और बीच में कीटोनिक ग्रुप है। क्लियर। अब सपोज आपके पास 2 कंपाउंड दिया है, एक है कैल्शियम एसिटेट, देखो 2 कैल्शियम एसिटेट के मॉलिक्यूल्स है। अगर 2 कैल्शियम एसिटेट है तो देखो यहां से भी निकला, यहां से देखो क्या निकल रहा है, देखो कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से निकल क्या रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो Ca 2 Ca है, कार्बन कितने 1 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6। क्लियर। सेम एज ऐसे भी कर सकते हो, कैल्शियम बेंजोइड ले लो और कैल्शियम फॉर्मेट ले लो, सीधे सीधे ऐसे निकाल दो तो बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH यानी बेंजल्डिहाइड, C6H5 C डबल बॉन्ड OH यानी बनेगा बेंजल्डिहाइड। ये भी क्या होता है, पुअर यील्डेड होता है। ठीक है, क्लियर, 100%। अब इसका अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करा तो सिर्फ इस प्रोडक्ट का, तो देखो यहां से निकलेगा CaCO3, तो बनेगा तुम्हारा बेंजोफिनोन। और इसका कराते हो तो यहां से भी CaCO3 निकालो तो ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, सॉरी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ये ठीक है, ओके, डन। एंड द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गिगनॉट रिएजेंट। तो यू नो वेरी वेल RMGX होता है, इसमें हम पहले यूज कर रहे हैं यूजिंग नाइट्राइज यानी साइनाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देखो ध्यान से देखना, HCN ग्रुप है साइनाइड,
इस पर करा रहा हूं मैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। तो देखो एक्चुअली क्या है, यू नो वेरी वेल, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो CH3 MgBr में तुम लोग को सबको पता है कि मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। अब CH3 नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, देखो अटैक किया, और प्लस वाला किस पे अटैक किया, MgBr के साथ। क्लियर, देखो आया वही चीज। अब यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, वैलेंसी जरूर चेक करो। अब देखो वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो देखो होगा क्या, ये MgBr जो है, ये MgBr इस OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, MgBrOH। क्लियर, और ये H जो H है प्लस का और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये आकर इस पे अटैक कर जाएगा, देखो ये बन गया। क्लियर, तो फिर से मैंने इस पे वाटर का रिएक्शन कराया है। अब देखो वाटर का रिएक्शन होगा तो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, फिर से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। अब OH कहाँ अटैक करेगा, इस प्लस वाले पे, और H कहाँ अटैक किया, इस पे, देखो ये बन गया। अब ध्यान दो, अब जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, अब यू नो वेरी वेल NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये निकलने की कोशिश करेगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, और ये हाइड्रोजन इस NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, NH3। तो देखो ये जैसे ही यहाँ पे आया डबल बॉन्ड हो तो CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। सेम ऐसे ये भी है इथेन नाइट्राइल, इसका भी आप अपने आप से प्रैक्टिस करना। और अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट में भी देखो, प्रैक्टिस पहले मैकेनिज्म करो, उसके बाद डायरेक्ट करो, तभी कर पाओगे। क्लियर, क्लियर 100%। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एक और भी दिया है, बेंजीन नाइट्राइल का। तो देखो पहले CN ने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, CH3 वाला यहाँ अटैक करेगा और MgBr यहाँ अटैक किया। फिर यहाँ पे वाटर का रिएक्शन हुआ, H आकर यहाँ अटैक किया, MgBr OH के साथ बाहर निकल गया। ठीक है, देखो ये बना। फिर इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो H प्लस यहाँ आकर अटैक हुआ और OH आकर यहाँ पर। अब NH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ये निकला तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाकर H के साथ NH3 के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब जैसे डबल बॉन्ड हुआ तो देखो क्या बन गया, एसिटोफिनोन। अब इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लो। फिर है यूजिंग ईस्टर्स। देखो ईस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, ईस्टर्स में भी वही चीज होता है। देखो अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ईस्टर का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसिटेट। इथाइल ये वाला पार्ट और ये पार्ट को बोलते हैं एसिटेट। आईयूपैक नेम इज इथाइल एथेनोएट। इथाइल एंड दिस पार्ट दो कार्बन है तो एथेनोएट, OAAT इज अ सफिक्स। तो देखो इसमें दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये। अब तुमको पता है Mg इज अ पॉजिटिव और दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव अटैक किया। देखो, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी में प्रॉब्लम होगी, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर निकल गया। देखो अब जैसे निकला तो Mg क्या है, पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा। क्लियर। अब OC2H5 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये निकलने की कोशिश करेगा, तो MgBr बोलेगा, MgBr के बीच में जो बॉन्ड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर MgBr और OC2H5 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जैसे देखो ये बॉन्ड नीचे आया तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। सेम ऐसे ये भी है, इसका भी प्रैक्टिस करके देखो आप। और भी मैंने रिएक्शन लिखे, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। तो दिस इज अ फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद स्टार्ट करवाऊंगा मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। थैंक यू।